वो पलट जाते हैं, रोज पलटते रहते हैं। नालियां भरी पड़ी हैं, लोग मजबूर हैं। लेकिन रोड बहुत खराब है ना इधर की। कितनी सीरियस चोट लगी? बुराड़ी नहीं है, सबसे बड़ा नरक है। Normal life has become a nightmare for them. The resignation of another neta is now being demanded. बच्चों को स्कूल भेजने में इतना दिक्कत होता है, भर जाता है पूरे रोड पे जब बारिश आएगी। These roads are a nightmare to travel on. The entire road is broken. तो पिछले 5 सालों में ये रोड नहीं बन सकता था। काफी लोग कह रहे हैं कि टू व्हीलर्स गिर जाते हैं। और कूड़ा इतना फैला रहता है, कूड़े की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ये रोड इस बुराड़ी विधानसभा की लाइफ लाइन है। अब ये दलाल हो गए हैं। यहाँ रहे बैटरी रिक्शा गए हैं, टेम्पो तक पलट रहे हैं। ऑफिस के लिए सुबह आदमी घर से निकलता है ना, तो रात को आते हैं तो पता क्या कहता है, भाई आज घर पहुंच जाऊं। ये दमनकारी सरकार है। बुराड़ी की जनता को इन्होंने मूर्ख बना रखा है। रेखा गुप्ता भी आई थी यहाँ पर। वो लोग हाईवे से आते हैं और चोरी चोरी आते हैं। नर्क जैसा जीवन बना के रख दिया है यहाँ के विधायक ने, यहाँ के एमपी ने। संजीव झा आप एमएलए और मनोज तिवारी बीजेपी एमपी हैं यहाँ से। आने जाने का रास्ता ही नहीं है। A day after our Independence Day, a new protest has started in the national capital of our country, and the resignation of another neta is now being demanded. But this time, it's not a BJP leader, but an Aam Aadmi Party MLA's resignation is being demanded. I am coming to you from the Buradi area of Delhi, of the national capital, and here hundreds of people are protesting, demanding the resignation of the AAP MLA Sanjeev Jha here because of the bad condition of the roads here. This entire 4-kilometer stretch is full of potholes. The entire road is broken, and that leads to accidents, that leads to hours of traffic, that also leads to ambulances getting stuck, and they say that normal life has become a nightmare for them because of the bad condition of these roads. Now, let me show you that the Delhi police have set up barricades here to stop these people from marching ahead. These people want to march to the ring road, to the bypass here, but they are not being allowed to march, and the Delhi police have stopped them. There's both the Delhi police and also the CRPF that has been deployed here. And let me show you the preparations that they've done to control the crowd. You have tear gas shells that they also have ready, and these of course we saw being used at Jantar Mantar during the Cockroach Janata Party protest as well. You will also see them with lathis. So if this crowd gets out of control, they might resort to these measures. And there you will see a group of male CRPF personnel, and they also have lathis ready with them. But whether these will be used to control this crowd is something that we will have to see. But tear gas, as we've shown you earlier at the Jantar Mantar protest, is a means to control the crowd and to disperse crowds in a protest. Now, I'm currently on the other side of the protest, so let me take you inside and let me show you what these people have to say. We can personally confirm to you that these roads are a nightmare to travel on. There are so many potholes that you can see that while we are driving, the car is constantly moving because the entire path, this entire 3-4 kilometers of this path is lined by potholes, waterlogging. Even though it has not rained in this area for the last few days, there's still waterlogging here, and that is just the sewage water, that is the water from the work that's been going on, that's water from different sewer lines here that is out on the roads. And you can imagine that this condition, you'll see that there are hospitals also here. There is a Delhi government hospital here very close to this place on this very road, and you can imagine that ambulances also travel through this road. Pregnant ladies travel through this road. Pregnant ladies in labor travel through this road. They have to make it to the hospital, and you can imagine in those situations also they have to travel on such a road, get through such hurdles just to be able to go to the hospital, just for people to be able to go to their place of work, their office every morning. They have to take such a route. We are fortunate that we are sitting in a car. In a two-wheeler, this journey would be so much more risky, and people have that's why told us that
in two-wheelers also skid, and two-wheelers also face accidents on this road, because it is impossible to have a normal ride on this road. And we'll show you those visuals also that we made while we were driving on this road, and you'll see that in those visuals the camera is so shaky. We are not able to keep the camera stable, because that's how bad the condition of these roads is. That's how much the car was moving and we were moving throughout this entire path. So it is truly unfortunate that this has been the condition that so many people, that lakhs of people have had to go through and are still going through for the last 5 years, and still the government is not prioritizing this. These people who are protesting are not asking for anything outrageous. They're not asking for they're not even asking for a new school or a new hospital to be built, but they're just asking for their lifeline and their source of connection to the rest of the world, their basic right, a road. They're just asking for that to be fixed. You'll see that all vehicles here in front of me, they're all, you know, in puddles. They're all in traveling through potholes, and even our camera is shaky. We're not able to show you that properly, but you'll see that these big vehicles, trucks, buses, are all traveling like this. Even on this side, you'll see that it's all the entire road is broken. You can't even call this a road. It's broken, it's full of potholes, and it's waterlogged. So if people pay taxes, can't even get these basic services, then those people, those leaders should be ashamed of being in power for more than a decade. A string of protests that have started across the country demanding resignations of netas who have failed to act and failed to fulfill their duties. But in this case, of course, the resignation that's being demanded is of the Aam Aadmi Party MLA Sanjeev Jha. Let me tell you that this MLA has been in power in this area for the last 13 years now. He has been in power since 2013. But the locals also say that the Delhi government also has some responsibility. The MP here of this area is a BJP MP, Manoj Tiwari. You'll see the roads that we have to walk through. You can't even take your vehicles here. You can't walk here. It is a really bad condition that we are seeing right in front of our eyes. And Ananya, be careful while you come here. And here you'll see that these residents are protesting, and this is the road that we actually have to take, and this is what these residents have to take every single day to continue their normal lives. And that is why families, women, men have all come out on the streets. You'll see that several women are here out on protest, and they are demanding accountability for these bad roads. Traffic is not able to move because these protesters have actually jammed the road. You will see that through this truck, what they are saying that we are staging a chakka jam, that we will block this road if our demands are not met. आप जी बता सकते हैं आप कि हाउ बैड इज द सिचुएशन हियर? हर दिन बुराड़ी हॉस्पिटल में 4 से 5 ऐसे केस आते हैं जो रिक्शा पलट जाते हैं, ई रिक्शा गड्ढों में, ठीक है, पानी भरा रहता है और कूड़ा इतना फैला रहता है, कूड़े की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, ठीक है। रोज बंदे, ये तो ट्रैफिक आप अभी देख रहे हो, शाम के टाइम पे रोज यहाँ से लोग कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाते हैं शाम को जब ड्यूटी। ट्रैफिक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ऑपोजिट साइड पे पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, और ये ट्रैफिक पूरा दिन लगा रहता है, सुबह शाम। अमूमन शाम के टाइम पे जब पीक आवर्स होते हैं ड्यूटी से छूटने वाले के, रोज यहाँ से ऐसे ट्रैफिक लगा रहता है दोनों साइड में। तो ये एक 2-3 किलोमीटर का स्ट्रेच आपको कवर करने में कितनी देर लगती है ट्रैफिक की वजह से? कम से कम, वैसे तो 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन हमें कम से कम 40 से 45 मिनट लगते हैं 3 से 4 किलोमीटर जाने में। 3-4 किलोमीटर ट्रैफिक की वजह से भी, और क्योंकि रोड टूटा हुआ है आपको धीरे चलानी पड़ती है। राइट। और काफी लोग कह रहे हैं कि 2-व्हीलर्स गिर जाते हैं, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, एक्चुअली जब बारिश आता है तो पानी भर जाता है, लेकिन अभी क्या है, बारिश नहीं है 3-4 दिन से, लेकिन फिर भी पानी भरा हुआ है। और गड्ढे क्या हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि कितना गहरा गड्ढा कितना है, तो ई रिक्शा जो होते हैं वो पलट जाते हैं। यहाँ से आने जाने का जो साधन है वो ई रिक्शा है अपना, तो जो भी ड्यूटी वाले आते हैं उसमें आते हैं तो रोज पलटते रहते हैं। और आप कह रहे हैं 3-4 केसेस यहाँ के लोकल हॉस्पिटल में रोज के आपको मिलेंगे, ठीक है। एक तो सिचुएशन ऐसी, ई रिक्शा पलटने से बाइक वाले के चोट लग गई, बाइक वाले का पैर पे चोट लग गई, तो उसने केस रिक्शे वाले पे कर दिया, न कि यहाँ के विधायक सांसद पे करना चाहिए था, जो इनकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। तो आप लोग किससे अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं? जो लोग आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे MLA आम आदमी पार्टी के हैं संजीव झा,
पिछले 13 साल से यहाँ पे एमएलए हैं। मनोज तिवारी आपके एमपी हैं बीजेपी से, वो 2 टर्म से पिछले 10 साल से करीब वो एमपी हैं। आप किससे ज़्यादा गुस्सा हैं? गुस्सा दोनों से ही है, क्योंकि इन दोनों की ही मिली भगत की वजह से ये काम हो रहा है। क्योंकि जो हमारे संजीव झा जी हैं, उनका ये हमेशा यही आरोप रहता है कि बीजेपी वाले हमें काम नहीं करने देते। ठीक है, जो रोड का वो उद्घाटन करते हैं वो कहते हैं कि बीजेपी वाले उस चीज़ को रोक देते हैं। ठीक है, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि वो काम कराने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो उनका ये बिलीव है कि लड़ाई झगड़ा में ही उन्होंने उलझा रहना है, काम कराने का मतलब कोई पॉजिटिव तरीका नहीं है उनके पास। तो बीजेपी वाले इसलिए पुश नहीं कर रहे होंगे कि अच्छा आम आदमी पार्टी ब्लेम होती रहे, और आम आदमी पार्टी के एमएलए तो पिछले 5 साल से ये कंडीशन है और कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं। यहाँ वो भी यही रोड लेते होंगे पर फिर भी वो ठीक नहीं करा रहे। रोज की ये जाम आप अभी देख रहे हो, लेकिन रोज के जाम है। और ये बसें जो हैं ये डीटीसी की पहले आगे यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे नथुपुरा जाती थी, लेकिन अब ये 2 किलोमीटर आगे आके रुक जाती है, क्योंकि रोड की सिचुएशन ऐसी है कि बस नीचे गड्ढों में फंस जाती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं जाता, ट्रांसपोर्ट भी आगे नहीं जा तो रहा। आप लोग कट ऑफ हो गए हैं एक तरह से। कुछ लोग हमें ये भी बता रहे थे कि आंटी अगर आपसे बात कर सकती हूँ, कुछ लोग कह रहे थे कि हम मेहमानों को भी नहीं बुलाते हैं, इतनी खराब रोड्स हैं अब। बच्चों को स्कूल भेजने में इतना दिक्कत होता है, जब सारा बैग बस्ता उसका सारा जूते उते खराब हो जाएंगे, सारा धोना पड़ता है मिट्टी में और पानी जो भर जाता है पूरे रोड पे। जब बारिश आएगी पानी जाने का रास्ता ही नहीं है। पर मतलब ना यहाँ पे ऑटो आने को तैयार है, ना कैब आने को तैयार है, आपके मेहमान भी आने को तैयार नहीं है। मेहमान को तो का बेइज्जती कराने के लिए बुलाए हैं। अच्छा, आप बुलाते ही नहीं है? हाँ, कि आएंगे तो देखेंगे कि कितना गंदा है यहाँ पे ऐसा रास्ता में। मतलब आने जाना हमें ही मुश्किल पड़ जाता है कि हम कैसे रहें। बाहर नहीं निकलते, बारिश हो जाएगा तो बस ऑनलाइन सामान मंगा लेंगे, बस खाने पीने का अपना गुजारा। फंस जाते हैं अंदर बारिश हो जाए। बारिश होता है तो बैठे रहो घर में। तो ये जो आज प्रोटेस्ट चल रही है, आप लोग भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, इस आंदोलन जो अभी यहाँ पर शुरू हो रहा है, तो कब तक आप लोग बैठे रहेंगे यहाँ पर? मैं यहाँ 5 साल से बस चलाता हूँ। मेरी गाड़ी इधर खड़ी है सामने 143। 5 साल से अभी तक पूरी दिल्ली के अंदर जितना बुरा हाल बुराड़ी का है, यहाँ के पैसेंजर भी इतने परेशान है। हम जैसी गाड़ी निकालते हैं ना, गड्ढा होता है, अगर जो आगे से बचाएंगे तो बीच में लग जाएगी, बीच से बचाएंगे पीछे से लग जाएगी। मैं यहाँ की जनता से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर जो यहाँ की जनता सोती रही तो इससे बुरा हाल रहेगा। 5 साल मुझे हो गए देखते हुए। अभी हमारी गाड़ी बुराड़ी तक जा रही है, बुराड़ी स्कूल तक। अब आप ये बतलाओ, जो केशव नगर की सवारियाँ हैं, बस पहले आगे तक जाती थी पर अब नहीं जाती क्योंकि रोड इतना खराब है। हाँ, क्योंकि केशव नगर की सवारी हो गई, इब्राहिमपुर की सवारी हो गई, जो बस अड्डा गांधीनगर सीलमपुर यानी कि दिल्ली में नौकरी करते हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा? तो कैसे जाते हैं वो लोग? बस नहीं जाती। वहाँ से पीछे से आते हैं, बैठ गए, अभी पीछे से बैठ रिक्शा में बैठ गए थे सवारी। अभी जब बारिश हुई थी तो बैठ रिक्शा में आई थी बैठ के सवारी, तो वो कीचड़ के अंदर थे पूरे, यानी कि बैठ रिक्शा पलट गई थी उनकी। बसों के अंदर पानी भर जाता है। देखिए, जैसे ही यहाँ पे बारिश होती है, बसों के लो फ्लोर बसों के अंदर पानी भर जाता है। इतनी बुरी हालत हो गई है कि यहाँ के विधायक सांसद कोई सुन के राजी नहीं है, और पिछले 5 सालों से सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं, और लोग नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ पे वोट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से ये बुराड़ी के जो विधायक है, नंबर 1 विधायक जो जीते थे, पहले नंबर 1 थे। आज उस बुराड़ी की ये स्थिति हो गई कि उनको वो जो जीत का जो मार्जिन है, जो 1 लाख का था, वो 20,000 पे आ गया है। फिर भी जीत रहे हैं वो, ऐसे ना काम करके भी वो जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? अब जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, बिल्कुल। मैडम देखिए, पहले जो हालात थे अब वो हालात नहीं रहे बुराड़ी। बीजेपी कैंडिडेट अब जब जीत गया तो बिल्कुल। और देखिए बीजेपी का यहाँ पे बीजेपी अपने कैंडिडेट को उतारती नहीं है, और हर बार एक ही व्यक्ति है, शैलेंद्र कुमार जिनका नाम है, वो हर बार खड़े हो जाते हैं। शायद उनका एनडीए की सरकार के साथ कोई गठबंधन है जो उनको हर बार टिकट मिल जाता है, पिछले 2 बार से मिल रहा है। तो आपको कोई और भी अच्छा नहीं मिल रहा है? संजीव झा के सिवा कोई और ऑप्शन भी नहीं मिल मैंने रहा? कहा मैडम, बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे, मगर कहने का मतलब है संजीव झा जब तक मान लीजिए बीजेपी को कोई टिकट देता नहीं यहाँ पर, और इसका फायदा उनको मिल जाता है हर बारी। नर्क जैसा जीवन बना के रख दिया है यहाँ के विधायक ने, यहाँ के एमपी ने। और मैं तो अभी तो आप सॉफ्टवेयर रोड की बात कर रहे हैं। आप इनके जो निगम के जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आप गलियों में भी चले जाएंगे तो रोडों का बहुत बुरा हाल है, नालियां भरी पड़ी है, लोग मजबूर हैं। आप सब लोग टैक्स भरते हैं, नौकरियां करते हैं, सरकार को पैसे देते हैं, और आपका पैसा जाकर मैडम एक बार इनकी जेब में एक बेसिक राइट नहीं मिल रहा। अगर मान लीजिए मैडम, जब सरकार खुद कह रही है कि हम आपको 100 करोड़ रुपए देंगे, बीजेपी की सरकार ने अनाउंस किया, इतनी मिट्टी है कि खांसी आ जा रही है बार-बार, इतनी मिट्टी है यहाँ पर गले में। अब तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है। अगर जो इससे पहले की वीडियो में आपको डालूं ना, जब हम गाड़ी लेके जाते हैं
तो पीछे स्कूटर मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, बेचारा रोक के खड़ा हो जाएगा क्योंकि इतनी मिट्टी आती है। पीछे से धूल इतनी उड़ती है। बीमार हो रहे हैं लोग, बीमार हो रहे हैं। सांस, लोग यहाँ पे सांस की बीमारी से परेशान हो गए हैं। लोग कहते हो सांस की बीमारियां हो गई, लोग अस्थमा हो रहा है लोगों को। अस्थमा हो गया लोगों को, लोगों की टांगे टूट रही हैं। रोज रिक्शे पलट जाते हैं। और सुनिए, अभी दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं और ये कहाँ लग रहा है हमें आज तक यहाँ की जनता को नहीं मालूम कहाँ लगता है। अभी दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया है 100 करोड़ रुपए हम बुराड़ी के लिए दे रहे हैं, मगर यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता मैडम। सब ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। नहीं तो एक बात बताइए, अगर भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ता तो पिछले 5 सालों में ये रोड नहीं बन सकता था। अगर मान लीजिए कल प्रधानमंत्री को आना होता है या मुख्यमंत्री को आना होता है या किसी विधायक या पार्षद को आना होता है अपने, तो उनके लिए रेड कारपेट बिछ जाता है उस रोड पे। और यहाँ की जनता क्या मूर्ख है? बुराड़ी की जनता को इन्होंने मूर्ख बना रखा है यहाँ के सांसद ने और विधायक ने। और ये भी और दोनों के दोनों बिहार से आते हैं। हमें शर्म आती है कि बिहार का नाम भी इन लोगों ने बदनाम करके रख दिया। संजीव झा आप एमएलए और मनोज तिवारी बीजेपी एमपी हैं यहाँ से। बीजेपी और ये MP भी है मनोज तिवारी। ये सर यहाँ पे करीब 1-2 महीने पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पीएम आए थे कोरोनेशन पार्क के पास एक इवेंट के लिए। यहाँ पे मेट्रो रेखा गुप्ता भी आई थी यहाँ पर, मुखमेलपुर गांव में आई थी एक पार्क का उद्घाटन करने। वो लोग हाईवे से आते हैं, 100 फुटे हाईवे से आते हैं। कोई मेन इस 100 फुट रोड से नहीं आना चाहता, हाईवे से आते हैं और चोरी आते हैं। जनता के बीच से होके नहीं आना। आज उनकी इतनी हिम्मत थी कि वो जनता के बीच से होके आ जाए। वो चोरी आते हैं और चोरी चले जाते हैं। जब वो मेन रोड का यूज करेंगे तब उनको आम जनता की आवाज का पता लगेगा, दर्द का पता लगेगा कि आम जनता कितने दर्द में। मैडम यार लोग मर रहे हैं यहाँ। कितने मैं ऐसे लोग दिखा दूंगा जिनकी टांगे। अभी आप सुबह अगर प्रोटेस्ट में अगर आप आती तो आप देखती कि एक आदमी जिसका पैर कटा हुआ था वो आया हुआ था। यहाँ पर अंधे लोग आए हुए हैं, ये अपनी आवाज उठाने। ये आम जनता है, क्यों आएगा एक अंधा आदमी आपके बीच में? क्यों आएगा अंधा आदमी? इसलिए आया है आपके बीच में किसको दर्द है। यहाँ आम जनता का दर्द है, हम लोगों का दर्द है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, इतने भ्रष्टाचारी हो चुके हैं कि इनको ये जो लाल कुर्ते पहन के घूम रहे हैं ना, इनको कोई हक नहीं है। लाल कुर्ता क्रांति का प्रतीक है, क्रांति का संकेत है, मगर अब ये क्रांतिकारी नहीं रहे, अब ये दलाल हो गए हैं, भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। और इतने भ्रष्टाचारी और इतने लिप्त हो चुके हैं कि इनको अधिकार नहीं है बुराड़ी की जनता को जवाब देने का कोई भी। इतने भ्रष्टाचारी हो चुके हैं ये। हम अपने घरों से अपने बच्चों को छोड़ के आए। क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि कल को हमारा बच्चा इस रोड पे ना मरे, हमारा बच्चा इस रोड पे ना मरे, यहाँ की जनता रोड पे ना मरे। कोई बेचारा, आप यकीन मानेंगे यहाँ की जनता की इतनी बुरी स्थिति है कि अगर वो अपने ऑफिस के लिए सुबह आदमी घर से निकलता है ना, तो रात को आते हैं तो पता क्या कहता है, भाई आज घर पहुंच जाऊं, क्योंकि पता नहीं है मैडम वो घर पहुंच पाएगा कि नहीं। रोडों की स्थिति ये है कि वो घर भी पहुंच पाएगा कि नहीं। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों के पास जाएं और पूछें, आम जनता से पूछें कि हाँ जी आप बताइए आपकी दुकान में क्या हाल है। मैडम वो पता सब दुकानें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मैडम मैंने उन लोगों से सुना, वो लोग अपने मुंह से बोलते हैं। कितनी बार यूट्यूब पे भी देखता हूँ, भाई हमारा काम काज खत्म हो गया, काम के धंधे खत्म हो गए, भाई किराए थे। मैडम 11 महीने का एग्रीमेंट होता है एक दुकानदार का, आप कुछ जानती हैं? एक दुकानदार का क्या कहता, भाई मैं तो लेके पछता रहा हूँ, रो रहा हूँ, मेरे पास किराया देने के भी पैसे नहीं है। भाई साहब है कोई तो बता दो। अब इसका जवाब कौन देगा? ये जिम्मेदारी लेते हैं यहाँ के एमएलए संजीव झा जिम्मेदारी लेते हैं? कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी। दिल्ली की जंतर मंतर सबसे बड़ी विधानसभा बुराड़ी विधानसभा दिल्ली के अंदर दूसरे नंबर पे आती है। 9 लाख की आबादी है, 4 लाख वोटर है। उन 4 लाख वोटरों ने जब इन पे विश्वास दिखाया, दोनों पूर्वांचलियों पे, पूर्वांचल के नाम पे इन्होंने पूर्वांचल के लोगों को ठगने का काम किया है। अब सबसे ज्यादा जो परेशान पूरे 9 लाख लोग हैं, ये रोड इस बुराड़ी विधानसभा की लाइफ लाइन है। और इस बुराड़ी के अंदर केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री राजनाथ और जेपी नड्डा, पीएम मोदी यहाँ आए हैं, अमित शाह भी यहाँ पे आए प्रचार करने के लिए, पर प्रचार के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। इस रोड को सत्यानाश, ये दमनकारी सरकार है, ये लोगों का दमन करने में विश्वास रखती है, ये लोगों का हक छीनने में विश्वास रखती है। आज बुराड़ी के अंदर इन्होंने हमारा हक छीनना है और इन्होंने हमारे साथ दमनकारी। मैडम देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को भी यही कहा गया था 12 साल की सरकार में। उनको इतना अभिमान हो गया था, इतना गुमान हो गया था कि हमारी सरकार में, मेरे को बहुत अच्छे से याद है राजनाथ सिंह ने बोला था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, मगर आज वही 12 साल के बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो मैं आज इसी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, संजीव झा अगर काम नहीं करेंगे तो बुराड़ी की जनता अब उनको चुनने वाली नहीं है। जब उनको किसी रामलीला में उद्घाटन करना होता है तो आएंगे, रामलीला के मंचों पे आ जाएंगे, मगर जनता के बीच में नहीं जाते। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ की जनता से भी अपील करूंगा कि ऐसे विधायक को वोट ना करें जो जनता की आवाज ना सुनता हो।
ऐसे विधायक को बिल्कुल वोट ना करें। वोट जनता का अधिकार है और अपने अधिकार से ऐसे विधायक को ना चुने। We have one person here with us who's a victim of these horrible conditions of these roads. आप बताइए सर, आपको चोट लगी है इन्हीं रोडों पे ट्रैवल करते हुए? हाँ मैम, इसी रोड पे चोट लगी है। कैसे, कहाँ चोट लगी है, दिखाइए। अरे वो गाड़ी से मैं गिर गया था, एक यहाँ पे लगी है और ये पैर के पास, इधर नीचे कमर के पास में। कितनी सीरियस चोट लगी आप? घाव बन गया पैर में, कमर के पास पैर में। लेकिन रोड बहुत ख़राब है ना इधर की, इसके चक्कर में बहुत दिक्कत होती है बारिश वारिश में, तो एक सामान बार वामान देने में। चोट भी आप दिखा सकते हैं, हाथ वाली आप अपनी चोट। पैर के पास है बस। ये सब चोटें हैं। कुछ लोगों को के फ्रैक्चर्स भी आए हैं, हेयरलाइन फ्रैक्चर्स भी आए हैं, सभी हम सुन रहे हैं। ऑटो बहुत पलटते हैं यहाँ पे, दुकान के सामने देखते हैं ऑटो पलटते हुए, उठाते हुए, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। ऑटो कुछ नहीं चल पाता है, बैटरी ये बैटरी रिक्शा भी एक ये पीछे। सर, लोग कह रहे हैं कि बैटरी रिक्शा यहाँ पलट जाती है, रोड इतना खराब। गाड़ी का पूरा नाश है यहाँ। बैटरी रिक्शा गए हैं, टेम्पू तक पलट रहे हैं। आपकी बैटरी रिक्शा पलटी है कभी? हाँ, मेरी कई बार पलटी है बैटरी रिक्शा भी। ये बुराड़ी नहीं है, सबसे बड़ा नरक है। हाँ, तो नुकसान होता होगा, नुकसान पैसे लगते होंगे ठीक कराने में। लगते हैं इसमें ठीक कराने में। और जो बैठते हैं उनकी तो अलग ही हो जाती है। और जो बैठती है सवारी, उनकी चोट वोट लग जाती है। टूट जाते हैं, फ्रैक्चर। चोट लगी है आपकी सवारियों को? चोट लगी है मेरी सवारी को भी। क्या क्या चोट लगती है? आपको भी लगी है क्या? मेरे को भी लगी, घुटने में, सवारी को भी पैर में, हाथ में या सर में, कहीं भी लग जाती है। और ये होता रहता है, हर रोज होता रहता हर रोज होता रहता है यहाँ। भाई 5 मिनट भी बारिश पड़ जाए ना तो यहाँ निकलने का रास्ता नहीं होता है बिल्कुल भी। इतने गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, बहुत गहरे गहरे गड्ढे। है। और बिना बारिश के भी हाल खराब है। बिना बारिश के ही बुरा हाल खराब है यहाँ पे। बिना बारिश के भी वी कैन शो यू कि अभी पिछले कुछ दिन से बारिश नहीं आई है, पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है, उधर भी कुछ जगह पर पानी भरा हुआ है, पॉटहोल्स हर जगह हैं, साइकिल्स इन्हीं रास्तों पर जा रही हैं, धूल मिट्टी इतनी है वो हम खुद फील कर पा रहे हैं। मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू पीक टीवी फॉर मोर सच ग्राउंड रिपोर्ट्स एंड फॉर मोर सच स्टोरीज ऑफ पीपल, स्टोरीज दैट मैटर।